So in the last video that I did, I had said that I'll try to sort of do a series on anxiety. So let's just say this is the second part of that series. So what I'm going to talk about in today's episode, if you say, are two things. First, how anxiety and mental health affects your physical health. Secondly, or probably the second one first, which is basically who do you ask for help. So I'll begin with the help part of it because क्या हुआ था पिछले बार when I posted the video, a lot of people started sending me DMs saying that I have XYZ issues and I need help or give me solution or whatever. मैंने कभी भी अपने वीडियो में नहीं बोला था कि आई एम अ लाइसेंस्ड काउंसलर ऑफ एनी सॉर्ट. मैंने कभी क्लेम नहीं किया है कि मैं किसी और की एंजाइटी दूर कर सकती हूँ. द ओनली थिंग आई हैव क्लेम्ड इन माई वीडियो, इफ यू कैन कॉल इट अ क्लेम, इज दैट आई एम गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट the fact that I am dealing with anxiety. I have dealt with anxiety. I have been dealing with anxiety for the past 3 to 4 years now. And I'm going to talk about my journey. और अगर उसको सुन के if you feel that there are certain things you can pick up to have a conversation first with yourself and then with your family, then I would think that I have played a little bit of my part in making somebody else's life a bit easier. I wouldn't even say better. तो हेल्प वाली चीज से शुरू करते हैं. जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं मैसेजेस और फेसबुक, इंस्टाग्राम, 50 टाइप के सोशल मीडिया पे डालते हैं कि XYZ died by suicide. You all know who I mean by XYZ right now. That's why we should all talk about mental health. Please reach out to me. Really, that's the shittiest thing ever. Should not do that. क्योंकि अगर आप ये पोस्ट डाल रहे हो उसके बाद somebody believes in that post and tries to call you up and you were like can't really bro, तो फायदा कहाँ हुआ? I know it's not a nice thing to hear, but it damages more than it helps. So या तो आप disclaimer लगाइए कि I'll try to be more available to certain set of people, क्योंकि nobody is a superman. You can't be available to 500 people at the same time. You need some space for yourself. आपकी इमोशनल नीड्स भी है, आपकी खुद की मेंटल हेल्थ भी है पहले, कि आप पहले you're available. 500 लोग तो बहुत ज्यादा बोलते हैं. मैंने कभी ट्राई कीजिए आप 5 लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए अवेलेबल होना, 5 लोगों के एंजाइटी के साथ डील करना. Unless you are a professional, and I'm assuming here that even professionals have their own way of dealing with whatever their work stress are, dealing with so many people coming to them with their anxiety issues. It's not a joke. Copy pasting बहुत आसान काम होता है. और over time I have heard so many terrible stories about how people have made this more of a social media में हो तो डालना तो बनता है यार about mental health than actually really caring about it. Like at this point of time मैं किसी को नहीं बोल रही होंगी कि आप अपना mental health का जो burden है वो मुझे दीजिए, क्योंकि at this point I don't think I'm in a space to be able to deal with somebody else's problem because it's unfair. आप किसी को बोलो कि हाँ जी शेयर कीजिए मेरे साथ एंड फिर बोलो ओहो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मेरे से नहीं हो पाएगा. किसको अच्छा लगेगा? इससे अच्छा तो आप उनको बोलिए ना कि अच्छा मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, ये मेरे अवेलेबल रिसोर्सेस है फिर ताकि वो इंसान जो आपके साथ शायद महीनों सालों के रिप्रेशन के बाद कोशिश कर रहा है किसी डायलॉग के लिए विद समबडी एल्स, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू दैट पर्सन. वो 100 कदम पीछे चला जाएगा ये सोच के कि जिस लेट्स से मे बी यू वर द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ उन्होंने ये शेयर करने की कोशिश करी हो, और आप फिर जब आपके पोस्ट ऑपोजिट टू व्हाट यू सेड इन योर पोस्ट यू इमीडिएटली रिट्रीटिंग. सो it's a good idea to actually tell them ki okay, this day, this hour, today, I am in this frame of mind that probably I would be willing to listen. I do not know how much I'll be able to help, but yes, I'm willing to listen. Lay down boundaries. Boundaries हर चीज में important होता है. It's not okay to dump your issues on somebody else, and it's equally not okay to say that you're going to take on somebody's issues and retreat at the first point. It's very, very important कि दोनों तरफ से आप boundaries set कीजिए. आप काउंसलर नहीं है तो फालतू का प्रोफेशनल हेल्प मत ऑफर कीजिए. इट्स टेरिबली डैमेजिंग.
इट्स लाइक गोइंग टू अ फार्मेसी और दूसरा बंदा वहां मेडिसिन खरीद रहा है या वो पूछ रहा है आपको कि फीवर के लिए क्या सही है, और आपको नहीं पता, आप डॉक्टर नहीं हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि अरे ये दवाई ले ले, ये तो सही है. अब आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जस्ट लाइक, और दूसरी चीज, आप द पीपल हु नीड हेल्प, नाउ लेट्स जस्ट कम टू दैट. आप किसी से भी मदद मांगोगे, रैंडम स्ट्रेंजर, आई एम अ रैंडम स्ट्रेंजर टू यू. अ लॉट ऑफ पीपल हु डीएम्ड आर नॉट पीपल आई नो. मैं एक रैंडम स्ट्रेंजर हूं इंटरनेट पे. आप अपने इश्यूज मुझे बता रहे हो, मेरी कोई क्रेडेंशियल्स आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मेरे पास डिग्री है कि नहीं. क्या आप, अगर आपको पेट दर्द है तो आप किसी भी बंदे के पास चल जाके बोलोगे कि आप प्लीज मेरा पेट दर्द ठीक कर दीजिए? आई एम अज्यूमिंग आप ऐसा नहीं करते हो. जब आपकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो आई एम प्रीटी श्योर आप 100 बार चेक करते हो, अरे ये डॉक्टर सही है कि नहीं, उसकी डिग्री सही है कि नहीं, फेक तो नहीं है. अरे हम नर्स को नहीं बोलेंगे, हम तो डॉक्टर को बोलेंगे. आप अपने फिजिकल बॉडी को लेके इतने जागरूक हो, बट व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ, यू आर फाइन विद सेइंग इट टू एनीबडी एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया. प्लीज थिंक अबाउट इट. कमिंग बैक टू द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ. सो लाइक राइट नाउ, कल की बात है, आई हैड टेरिबली लो बीपी. अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, but I really thought I should do it अभी ये वीडियो at this point, because at least पूरे दिन के रेस्ट के बाद I am feeling better. But part of it is because of the stress and anxiety I'm experiencing due to certain reason. And ये होती है डरावनी चीज कि हम मेंटल हेल्थ को बहुत पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं. हमें लगता है कि अरे हो जाएगा, मन की बात है, ठीक हो जाएगा, मूड सही हो जाएगा, आज नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, आज थोड़ी दारू पी लेते हैं, आज थोड़ा वॉक पे चल जाते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग प्लस अनलॉक है, लेकिन वी शुड स्टिल बी मोस्टली इंडोर्स, राइट? एनीवे, या आई डोंट नो, पेंटिंग कर लेते हैं, कुकिंग कर लेते हैं. ऑफ कोर्स दीज आर strategies, these are things that you can help you cope with your anxiety, but these are not long term solutions. You have to also understand that जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते हो, या अगर आप नहीं डिस्कस कर रहे हो, मैंने पिछली बार भी ये चीज सजेस्ट करी थी कि आप लिख लीजिए, अगर आपसे पॉसिबल है तो पुट इट डाउन इन वर्ड्स. इट ऑलवेज हेल्प्स यू. फिजिकली कितना डैमेजिंग होता है एंजाइटी, ये मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बताया था. मैं दोबारा ये बात बता रही हूँ that my weight gain for the longest time was because of the amount of stress and anxiety I was experiencing, which then led to, of course, insomnia, etc. At this point of time as well, in fact, एक और चीज जो मैंने पिछली बार नहीं बोली थी, so a lot of you must have heard, or if you might not have heard, that there is a disease that a lot of women, in fact, at least in India itself, undergo, which is PCOD, PCOS. They are two different things, by the way, so let's not confuse them. So I had skipped my periods. I was worried कि अच्छा चलो, मतलब I had cramps, but I did not get my periods. So finally I went and consulted a doctor, and after checking everything, all the blood tests and all, what she said was, this is because of stress. And that was my sort of wake up call कि I know people who suffer from this. Weight gain के साथ ये linked होती है, and then if you have either of this, it's very difficult to lose weight, right? So that's all of those tests, जो endless test होती है, PCOD profile test होती है, महंगी होती है, of course, किसी भी प्राइवेट लैब में कराओगे बहुत महंगी होती है. अल्ट्रासाउंड से लेके बहुत सारी टेस्ट होती है. इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ योर टाइम. इट्स पेनफुल, रनिंग अराउंड, पीपल पुटिंग नीडल्स इन यू. तो उस वक्त मैंने डिसाइड करा था कि अगर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद वॉकिंग, स्टार्ट विद टॉकिंग, स्टार्ट विद, चाहे किताब पढ़ के नींद आती है तो किताब पढ़ के नींद आए, एनीथिंग टू गो. Of course, I had no guidebook, which was the whole point. But I decided to take up working out. क्योंकि often physical fatigue जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो there is more chance कि आपको नींद आ जाए, right? A lot of us probably are experiencing sleep issues even now because लॉकडाउन की वजह से most of us have reduced physical activity. अगर आप चाहे normally भी walk कर लेते थे, मार्केट वगैरह चल जाते थे, आप स्टेप्स ले रहे होते थे जो कि आपके एग्जॉस्शन को हल्का सा कंट्रीब्यूट करते हैं इन स्लीप. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ अस आर लॉक्ड इनडोर्स, आवर एक्टिविटीज हैव रिड्यूस्ड एंड वी आर स्ट्रेस्ड कि कब ठीक होगा, कब वायरस जाएगा, ऑल ऑफ इट. सो दीज वर टू थिंग्स आई हैड टू टॉक अबाउट जब मेरी तबीयत और थोड़ी सुधर जाएगी. एंड होपफुली इफ यू गाइज हैव एनी सजेशन
कि इसके ऊपर या इसके अलावा what I should talk about, I'll be glad to do. And again, I hope this video helps. And please don't ask help from random people because ये उल्टा काम कर सकता है कभी कभी. Okay, good night.